Friends, with 122 parliamentary constituencies going for election today, almost half of India would have voted. The direction in which this election is going has been determined by the voters of this country. The third front is a non-starter, and the voter is very angry with the Congress party. The angry voter, when chooses to vote against the Congress party, the word described by Mr. Rahul Gandhi happens to be Ullu. Let me remind him that when it's the fear of losing the power and the governance of this country, the Congress leadership should not lose their graciousness, because we have, as Bharatiya Janata Party, complete faith in the wisdom of the voters of this country. We know the angry voter of this country has decided to change the discourse towards the symbol of lotus, and that angers the Shehzada, and he uses a four-letter word to describe the angry voter by losing his graciousness is not called for, is against the democratic norms of this country. मित्रों, आज 121 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव है, जिसके साथ ही तकरीबन आधा भारत जो है वो चुनाव के मैदान में उतर चुका है और अपनी अपनी वोट डाल चुका है। और उसके वोट डालने के कारण जो संभावित दिशा निर्धारित की है इस देश के मतदाता ने, उसका हम सम्मान करते हैं। और उस सम्मान में यह भी छिपा है कि इस देश का मतदाता एक प्रभुत्व वर्ग को स्थापित करता है और देश की दिशा तय करता है, क्योंकि जिस दशा में आज देश है उसको बदलने के लिए दिशा का परिवर्तन अनिवार्य है, और वही दिशा बदलने के लिए कमल निशान तय कर चुका है। और उस मतदाता को उल्लू कहना एक विवेक से भरोसा उठने वाली बात है, जो कि कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने बौखलाहट में दिखाई है। उन्होंने बताया है और दिखाया है कि इस देश का मतदाता जो अपने विवेक अनुसार कांग्रेस पार्टी के विरोध में वोट डाल रहा है, उससे वो बिल्कुल बौखला चुके हैं। और इन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग इस देश के मतदाता के लिए किया जा रहा है, जिसने देश की दशा बदलने के लिए दिशा बदलना तय कर लिया है। और इस देश के मतदाता ने तय कर लिया है कि किसको कौन क्या बनाने वाले हैं। वो भी 16 मई को उसका निर्णय सबके सामने आ जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व भारत में रहेंगे उस निर्णय को सुनने के लिए, और अपना विवेक और सहनशीलता नहीं खोएंगे तब तक। जो भी कुछ निर्णय होगा आपको बताएंगे, अभी कुछ इस प्रकार का निर्णय नहीं है। चंद्रबाबू नायडू fielding their tickets in your seats. Chandrababu Naidu in Andhra Pradesh. No comments as yet. Nothing. Ahmedabad court has issued an order to register a case against Modi ji on concealing the fact that he is married in his nomination paper. No. It's issuing a notice is different from registering a case. This has been done by AAP, and he has not concealed anything, by the way. So this is a misnomer which media is lapping up, because even Sonia Gandhi has not disclosed in her affidavit the name of her spouse, and so has not even Manmohan Singh. His full posters have come up in the valley, once again asking for a coal boycott. How do you want to react to that? I think it speaks volumes about the manner in which governance is running in Jammu and Kashmir, and it also shows what should have been done to curb such elements, and we have not been successful in doing so as a government.
and shows the failure of the UPA. Congress has decided to give duty status to Ladakh. Is BJP okay with this? I'm sure we'll give a official statement on this regard. मैम एक सवाल है, बॉलीवुड में टूरिज्म के नाम पे कुछ लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है और उन्होंने कहा कि टूरिज्म का जो भी बात करे या जो कानून है उनको देना। देखिए, मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, लॉबिंग ग्रुप्स जो हैं, वो बॉलीवुड में सक्रिय हैं और वो बाकी देश में भी और विदेशों में सक्रिय हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज तक शायद ना तो सांप्रदायिक शब्द का मतलब समझ पाए हैं और जिन्होंने एक टॉलरेंट हिंदू कम्युनिटी को सांप्रदायिक कम्युनिटी बना के छोड़ दिया है। आपको वीरप्पा मोइली से कहिए तो जाके पहले कांग्रेस का इतिहास उठा के पढ़े कि हिटलर का काम अगर किसी ने इस देश में किया, जिसने लोगों के जो मौलिक अधिकारों का हनन किया, उनका नाम इंदिरा गांधी था। सोनिया जी के पिताजी खुद हिटलर की साथ बेंजो मुसोलिनी की आर्मी में खड़े हुए सिपाही थे। तो पहले अपना इतिहास उठा के देख ले, फिर बात करें। Supreme Court has ordered tag audit. एल.के. आडवाणी को नरेंद्र मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री बना। जसवंत, देखिए, भारत का संविधान हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है अपना विचार प्रकट करने की। तो जसवंत सिंह उसके तहत अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं, उसमें मेरे को क्या कहना है? देश की जनता तय करेगी किसका क्या होना है। मैं वो कांग्रेस और आप क्या मिली भगत कर रहे हैं, वो वही लोग जाने। Supreme Court has ordered tag audit of telecom companies. Do you think this is a good? Absolutely. I welcome every decision of the Supreme Court because had it not been for the Supreme Court, a lot of things would not have come in the forefront and many scandals would have gone unnoticed. 2002 के दंगों को लेकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर वो दोषी हैं तो वो फांसी में चढ़ने के लिए तैयार है। क्या किस संदर्भ में देखा जाए, क्या आज भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार है? देखिए, संदर्भ ये है कि किसी भी सरकार का काम न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को बरकरार रखने का होता है, माफ़ी मांगने का नहीं होता। और 84 के दंगे हों, 2012 के दंगे हों, 89 के दंगे हों, 59 के दंगे हों, लगातार जो इस देश में प्रकोप रहा है दंगों का, वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार रही है। और वो माफ़ी करके क्या अपराध खत्म हो जाता है? इस संदर्भ में आपको इस बयान को देखना चाहिए कि कोई अगर आपराधिक है तो वो माफ़ी से काम नहीं चलेगा, उसको अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए, जो कि 2002 के दंगों से पहले के अपराधों में या उसके बाद के अपराधों में आज तक नहीं मिली है। Election Commission has censured Amit Shah for his controversial speech. I'm not commenting on that. I'm not commenting. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि वीरप्पा मोइली एसआर ग्रुप की 2 कंपनियां, वो रत्ना गुप्ता और रत्ना को 2 कंपनियां हैं, उनको लाइसेंस दे रहे हैं। ये जो पेट्रोलियम ब्लॉक था, ये 21 साल पुराना आवंटन है जो कि 1993 में रद्द कर दिया गया था। इनके ऊपर सीबीआई जांच करनी होगी। तो अब ये फिर से ये उनको पुरानी रेट पे तो पेट्रोलियम ब्लॉक आवंटन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, पेट्रोलियम ब्लॉक आवंटन में पेट्रोलियम के अपने मसले हैं, मगर एएपी का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है वो भी कुछ जांच का विषय है। ख़ास तौर पर पेट्रोलियम के जुड़े हुए जितने सामान हैं वो हम मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं या ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, जहां पर तमाम अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं, तो वो एक अलग विषय है। वीरप्पा मोइली ने और बहुत करतब किए हैं, जिसमें जीएम फूड्स को लेकर जो ट्रायल उन्होंने ऑर्डर की, चलते चलते बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, ऐसे बहुत कारनामे हैं जो कि देश के आगे समय अनुसार आएंगे। भैया, मेरे को पुराने रेट पे दिए जा रहे हैं तो आपको 20 के रेट पे तो आज बाहर से खरीदना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम इसके तथ्य क्या हैं, लेकिन ये बहुत गहरी साजिश है और तमाम वो कौन से स्प्रिंग्स इसमें इन्वॉल्व हैं। Ma'am, Narendra Modi has said, why doesn't Sonia Gandhi wear a skull cap? Do you think that such kind of comments are really Called for? No, but the conduct of the person needs to be taken into account, especially when a particular person, while visiting the right victims, chooses particular camps
and not the other camps. There is discrimination even based on the religion of people while visiting the riot victims. While giving scholarships, there is a discrimination based on the religion. While giving sanctions, there is a discrimination based on religion. I think it is in that context he's made the statement to make it simple, because when you use complicated words, the message which needs to seep down is hard, and it is an oversimplification of the policies which UPA has adopted and which is basically run by the Congress party and by Mrs. Gandhi. Madam, TDP will violating the alliance dharma. Will you continue the alliance with the TDP? TDP is too early to comment. As the matter progresses, we'll keep you posted on the They issue. are fielding candidates in your seat. We'll keep you posted on this issue. कल शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनमोहन सिंह अच्छे प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस ने उनको दूल्हा बना दिया, तो ये कैसे दूल्हा है? ये तो बारू की किताब पढ़िए, आपको सब स्पष्ट हो जाएगा. धन्यवाद. थैंक यू.